आप देख ठीक है, पर ये सही है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जी पे अपवर्ड ट्रेंड था फॉर द लास्ट 20 अपवर्ड ट्रेंड था 2020 से लेके आई थिंक 2024 पे वी ऑल नो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज बिकॉज ऑफ BDS campaign globally and locally also and those are the major factors जिसके ऊपर overall advertising revenue from all multinationals decline हुआ है और वो हर नेटवर्क पे है competition का भी इसी तरह से decline है so that's the main reason for decline of the revenue. Profit after tax भी since 2022 we have had a very good upward trend and थोड़ा सा नेट पे फर्क आया है so nominal decline but CAGR is strong at 16.84%. Profit before taxation भी CAGR is strong and profit after tax अगर आप देख लें तो 20% से अभी भी हम आप हैं with the challenging times of revenue that we have had and we hope कि इसको upward trend को वापस लेकर आए इंशाल्लाह. This is the same thing what we discussed. Our next slide पे आ जाए. Our future outlook, we continue to strengthen our digital footprint. Our focus on growth in sports broadcasting is there. News has performed, as you can see, even in tough times. We have cut down our cost and revenue increase. इसकी वजह से हम लोगों ने जो है ना जो losses थे 310 million के वो ख़त्म कर दिए. So there is no loss on news. Last before last, if you remember, news was profitable for more than 200 million. So we've come back strongly on news and hopefully this year we will make some profits also more profits on news. Strategic new ventures. We continue to invest in content. I've continued to say, and I think it's been a proven thing, content is king. Already you see your channel is rating #1 and in the entertainment segment still the revenues are very high. We do see digital growth more stronger than the linear growth. However, we see our share of revenues from the current total revenue in the entertainment segment. We will have bigger share and we will be the industry leader in revenues on the entertainment segment. Entertainment segment linear still is the biggest revenue area or sector from our network. We are looking at two big technologies, two big areas for growth. Number one, we all know that we have one Ignite project on gaming and animation of incubation and incubation center in which we will be graduating 10,000 people in 5 years, 5,000 in Karachi and 5,000 in Lahore in our centers. We are the lead partners in the Ignite project. And with that, we do feel Hum will grow on gaming and animation sector on the technology. We have not only won that contract, but our focus is going to be to find opportunities in this area. This area will add more revenues for the company, and we don't see all the investment that we have got made in this sector. All the investment that we have made in this Ignite project will be recovered through this government contract that we are doing. And through this incubation, we intend to invest in gaming and animation area in the mid-term future. ठीक है ना? So that's a big area that we are going. And as you have already seen, we have cash flows. We are looking at some other areas which could give us high growth revenues. So we have great opportunity of investment, but we are being
cautious in looking at how the industry is going to react. And Alhamdulillah, the way your company has performed over the years, the growth, the profitability, the investments that they have made have been sustained, and we will continue to be a high growth company. And our target is कि ये 20 to 25% हमारा CAGR continue रहे for the next 10 years or so. Thank you. Any questions that I can answer? जी पूछें. ऐसे लाउडली बोल रहे हैं यार, कोई मसला नहीं. Streams fall under the final tax regime and normal tax regime, because you guys have an effective tax rate which really fluctuates a lot. So I just wanted to know which income streams fall under. नहीं, how do you say it fluctuates a lot? It doesn't fluctuate a lot. आप 5 साल की figure देखें. पहले if you're asking a question, answer our question. Our tax rates have not fluctuated over the last 4 or 5 years. They are pretty standard. So, and we do not want to our tax regime हम लोग इसलिए ज़्यादा share नहीं करना चाहते क्योंकि competitive advantage है हमें. So we don't want to share how we do, but our auditors are very strong and we use the best and most effective tax management. As you can already see, our effective tax is less than 15%, and it has continued to remain under 15% for the last 5 years, I can say at least. So your question is not correct in terms of that. And number two is we do not want to share how we manage our tax and what income, but they are all audited properly by the best tax advices that we take. And we do not share this information for a specific reason that the competition will find out. So thank you. Okay. My second question is that the company has booked an income of 76 million as management fee. So which company does it pertain to? They are wholly owned subsidiaries within our own company group. So कोई भी ऐसी company नहीं है कि किसी और को management contract दे रहे हैं. All this management contract fees is within the company itself, and no third party other companies are in this. अगर होंगी तो बहुत nominal होंगी, but nothing significant. Okay. I think the company's consolidated cash, in the consol accounts, the cash position is almost 1.54 billion of the foreign currency. It's placed in current accounts. My question is that since the company already has a savings account, so why is this huge number put in the current account position? Since this is our this is the income is that of a subsidiary, so we cannot, the other company cannot put it on the savings account. This is to be repatriable payable. So this is what my answer is. Technically you cannot do it, and it's within your own company that is payable to your own company. तो इसलिए उसको नहीं किया, but वो partly आता जाता है स्टेट बैंक के through. So that amount is of your own company. So वो nominal सा कोई फर्क होगा. उसका रीजन एक ये भी था, बोर्ड का डिसीजन था कि फ्लक्चुएशन हो रही थी डॉलर के ऊपर, लेकिन हम आस्ते आस्ते वो रिपैट्रिएट कर रहे हैं, या हमारे जो पेमेंट्स बाहर करनी होती हैं सॉफ्टवेयर्स की या कंटेंट की, वो फिर हम इससे यूज़ कर लेते हैं. क्योंकि आपको पता है जैसे क्रिकेट की सीरीज़ है या कोई इस तरह के पेमेंट्स करनी होती है, तो यहाँ से पेमेंट करना बहुत मुश्किल है, भेजना. तो अगर आपको सोनी की पैसे देने होते हैं या किसी कंटेंट के पैसे देने होते हैं, तो हम इंटरनेशनल इनकम ऑन बिहाफ ऑफ हम नेटवर्क अपनी सब्सिडी के थ्रू दे रहे होते हैं. थैंक यू वेरी मच. एनी अदर क्वेश्चन जी? हाँ ले लो. Sir. Sir, my question is related to your revenue categorization. इसमें अगर आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, आपके जो दो सबसे बड़े रेवेन्यू हेड्स आते हैं वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आता है और दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू. तो इसमें एग्जैक्टली क्या चीजें फॉल करती हैं वो आप बता सकते हैं? जैसे एडवर्टाइजमेंट एक तो मेन स्ट्रीम एड्स जो आई थिंक आपके चैनल्स पे लगता है, सब्सक्रिप्शन में एक यूट्यूब इनकम आती है जो मुझे आइडिया है. तो फर्दर इसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए? आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, क्योंकि दोनों मेजर चीज आप खुद कह रहे हैं कि सारी कवर हो गई, तो बाकी और रह क्या गया है.
कोई और सिग्निफिकेंट नहीं, नहीं। फैक्टर्स नहीं है, कोई नहीं, significant बट सर factors नहीं है मैं इसलिए क्या? डिफरेंस कह रहा हूँ कि जिस तरह 9 मंथ्स के अकाउंट के बाद आप लोगों ने कुछ मेरे ख्याल से अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी बदली हैं, तो उसमें पहले प्रोडक्शन में रेवेन्यू जाता था काफी सारा, बट नहीं वो नहीं नहीं, अब ऐसे कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने चेंज नहीं की है। हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वही हैं, और प्रोडक्शन का जो रेवेन्यू था वो प्रोडक्शन का ही रेवेन्यू था। और वो यू वांट टू एक्सप्लेन फर्दर? मैं जवाब देता हूं। देखें, ये प्रोडक्शन रेवेन्यू नहीं है, ग्राउंड बेस्ड रेवेन्यू होता है। तो ये जब इवेंट के हिसाब से लोग दे देते हैं तो आता है, हम रिकॉर्ड करते हैं। और कभी कभी ये होता है, बहुत रेयर ये होता है कि कभी एडवर्टाइजर कहता है कि मैंने ये प्रोडक्शन रेवेन्यू दिया है, नहीं अब ये प्रोडक्शन नहीं होगा, ये एडवर्टाइजमेंट। सो प्रोडक्शन रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको कहा था, ये प्रोडक्शन रेवेन्यू ही होता है। जब भी हम लोग इवेंट्स करते हैं, हम अवार्ड हुआ या कोई और किया, तो उसमें ग्राउंड के पैसे होते हैं जो कि प्रोडक्शन के होते हैं, या कभी कोई आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं जो ब्रांडेड प्रोग्राम होता है किसी का, तो जब वो ब्रांडेड प्रोग्राम होता है तो वो प्रोडक्शन के पैसे अलग देते हैं, और जो एड प्लेस करते हैं उसके अलग होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा वैसा का वैसे ही है जैसे पहले था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वैसे के वैसे ही हैं, और कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन फर्दर करने, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। वी आर वेरी क्लियर कि ये जो रेवेन्यू है, ये जब एडवर्टाइजर ग्राउंड या प्रोडक्शन के ऊपर देता है, नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, देन वी बुक इट अकॉर्डिंगली एज द एडवर्टाइजर्स हैव प्लेस दैट रेवेन्यू। कोई और अच्छा, क्वेश्चन? एंड सर एक और सवाल है आपका, जो अनकंसोलिडेटेड है उसमें तो 1.8 की अर्निंग्स है, बट कंसोलिडेटेड में 1.08 की है। तो मतलब लाइक सब्सिडरीज आपकी कुछ लॉसेस कर रही हैं, इसके ऊपर आप थोड़ी कुछ डिटेल्स बता सकते हैं कि ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं और आगे जाके अगर किस तरह? अगर आप थोड़ा गौर से स्टडी करेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। आई वुड वांट यू टू जस्ट रीड द बुक्स मोर क्लियरली इन डिटेल, यू विल फाइंड दिस आंसर इन दैट। आगे कोई और क्वेश्चन पूछे? हाँ प्लीज पूछो यार। So good question. I would say कि I think somebody from here has asked the question, कि mic नहीं है तो मैं repeat कर लेता हूँ. I think the question is कि we have put it on the presentation that we are doing some podcast and digital initiatives in news and entertainment जो कि digital only होगी. So very correctly pointed out and very, I would say, insightful question. Our focus, as I said, will be focus on digital. The growth in the market is there. Hence, we are creating, not क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन में वी हैव लिमिटेड टाइम। फॉर एग्जांपल 24 आवर न्यूज़ है, उसके अंदर आपका बुलेटिन का एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके अंदर आप स्पेसिफिक न्यूज़ कैरी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल के अंदर आप कई डिफरेंट टाइप की स्टोरीज कैरी कर सकते हैं जो कि क्यूरेट होती है फॉर your short forms and things like that. So digital curation कर लिए, we are growing on that. We think कि उसका immediate reaction नहीं आएगा, लेकिन हमारी reach उससे immediate बढ़ेगी, और revenue monetization in the next 2 years हमें उसमें बहुत area नजर आ रहा है. So we are gearing ourselves कि बहुत से लोगों का ख्याल है, और सही ख्याल है, कि migration linear से digital की तरफ हो रहा है. So we are started producing new content which is specific to digital. And the way we are putting it, our efforts, energy band, तो उसकी अलग टीम बन गई है, उसका अलग कंटेंट बनना शुरू हो गया है, and many other initiatives that we are going to see in the next few months that you'll start seeing, visualizing, and we see in the next 2 years, digital revenues will grow further, but we do not want to say कि यार यही content जो है ना enough होगा. There has to be specific content to the digital, and we are continuing to invest in that area significantly. Any other question, जी? ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? फवाद यूसुफ जी। फवाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जी। बस मुझे ये बता दें, आपकी टॉप लाइन में इस बार बड़े अरसे के बाद ग्रोथ की जगह डाउनवर्ड आई है, तो इसकी क्या वजह और आगे आप ट्रेंड क्या देखते हैं? यही, और इसके अलावा पर ग्रॉस मार्जिन भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए। फवाद, ये एक भी तो मुझे आप लगता है बता आप दें। लेट आए प्रेजेंटेशन में,
या आप सुन नहीं रहे थे? इस सवाल का जवाब जो ना पहला पहला सवाल था, ये बोर्ड मीटिंग में भी जवाब दिया है, इससे पहले इस प्रेजेंटेशन पे भी जवाब दिया है, डिटेल में जवाब दिया है। मैं शॉर्ट आंसर ये देता हूँ कि यू नो, फिर से एक दफा आपके लिए दोस्त हैं आप, बीडीएस की कैंपेन चली थी, एडवर्टाइजिंग इनकम जो है ग्लोबली कम हुई थी, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत इम्पैक्ट आया, आपको पता है, अभी आपने देखा प्रॉक्टर भी जा रहा है इसी चक्रों में, और भी बहुत सारे रीजंस है। सो एडवर्टाइजिंग ओवरऑल डिक्लाइन था ऑन पाकिस्तान मार्केट, नॉट जस्ट पाकिस्तान मार्केट, ग्लोबल मार्केट, बिकॉज ऑफ द लोअर सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। सो उसका एक इम्पैक्ट आया है मेजर, और उसी की वजह से ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि अगर रेवेन्यू ऊपर होता तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाते, सो दैट्स कॉल्ड कोरिलेटेड डायरेक्टली। सर सलीम, यही ट्रेंड आपका फिर करंट ईयर में भी रहने के चांस है, या वहाँ पर कुछ टर्न अराउंड होगा? मुझे करंट ईयर थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग का करंट ईयर इसी तरह से टफ था, जो फर्स्ट 6 मंथ से, लेकिन आगे मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। थिंग्स आर हैपनिंग मच। पाकिस्तान की आपको पता है इस वॉर के बाद एक इमेज भी बढ़ा है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी चीज़ें मैं देख रहा था, से एक्सपोर्ट फिगर्स भी बढ़े हैं, ठीक है ना। ओनली इन द मंथ ऑफ सितंबर यूएस में 11% एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे, विच इज़ अ हाई ग्रोथ। तो अगर इसी तरह से एक्सपोर्ट्स 10-15% बढ़ना शुरू हो जाए, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, लास्ट जुलाई सरप्लस भी था, अभी आगे भी नज़र आ रहा है कुछ पॉजिटिव चीज़ें। सो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड अपवर्ड ट्रेंड आ जाएगा। दैट्स हाउ आई फील अबाउट द मार्केट। अच्छा सर, ये आप आपने बोल दें, अभी फवाद, सलीम को भी क्वेश्चन, 2-3 और क्वेश्चन है, सर, सलीम एक बताएं। एक लास्ट क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन भी नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले रिस्पॉन्स किया था, आपके कंसोलिडेटेड अकाउंट में प्रॉफिट इन लास्ट क्वार्टर ड्रास्टिकली कम हो गया, बल्कि आई थिंक लॉस में आ गया। आपने कहा पढ़ लें आप लोग, लेकिन अब मैंने तो नहीं पढ़ा, प्लीज आप खुद ही बता दें इसमें क्या हुआ है। ठीक है, पहले मैं सभी का क्वेश्चन ले लूं, फिर इसका भी जवाब दे देंगे बास आपको, ठीक है? चलिए बताएं। सही, थैंक यू जी। वालेकुम सर। सर मुझे थोड़ा इग्नाइट के हवाले से डिटेल चाहिए थी कि इसमें क्या आपका आउटलुक है, और इसमें क्या किस तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे, एंड व्हाट इज द ग्रोथ दैट यू लुकिंग फॉर इन दिस न्यू प्रोजेक्ट, और ये कब तक ऑपरेशनल हो सकता है आपका जो इंक्यूबेशन सेंटर है? सो ये इग्नाइट का जो प्रोजेक्ट है ना, ये इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। टोटल इसकी वैल्यूएशन है 2.5 बिलियन रुपीस, ऐसे ही। तो 2.5 बिलियन है, वी आर द लीड पार्टनर, देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स लाइक Huawei, Tencent, Game BCN, and many other local partners are there. So it's a consortium project. The project का जो revenue है वो 2.6 बिलियन का है, जिसमें से हर पार्टनर, लम्स भी इसमें पार्टनर है, तो हर पार्टनर को उसकी फी प्लस एक सर्टेन उन्होंने फी प्लस मॉडल रखा हुआ है। तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉफिटेबल वेंचर, बट व्हाट वी सी इज कि इसमें हमें नॉमिनल प्रॉफिट जरूर है जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, एंड बीइंग अ लीड पार्टनर वी गेट सम शेयर फ्रॉम आवर पार्टनर्स आल्सो ऑन दिस प्रोजेक्ट एज फॉर द मैनेजमेंट मिलती है। लेकिन हम जो देख रहे हैं इसमें, वो ये देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्यूबेटिंग डिजिटल गेमिंग एनिमेशन का जो बिजनेस है ना, उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। सो नॉट ओनली वी विल मेक सम मनी which is not very big but good money. However, the bigger opportunity is the thing that we are planning. We've decided, हमारी ऑलरेडी 1 साल के अंदर जितना हमने काम किया इसके ऊपर, हमारी कंपनी की बहुत ज़बरदस्त लर्निंग्स और एट अ नॉमिनल कॉस्ट हो गई है, और ऑलरेडी हमें नज़र आता है कि वी विल प्ले अ बिग रोल इन गेमिंग एंड इनोवेशन इन द पाकिस्तान इंडस्ट्री, और वो एक्सपोर्ट्स जो हैं बहुत नज़र आ रही हैं, और एरियाज भी। और आप सोचे 10,000 लोग ट्रेन करेंगे पाकिस्तान में, और वो एक बंदा भी अगर आप सोचे 10,000 को $100 का रेवेन्यू भी अगर जनरेट कर देता है ऑन एन एवरेज, दैट्स लाइक $10 मिलियन सिर्फ मंथली का रेवेन्यू भी अगर मैं $100 का लगाता हूँ, और अगर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। $1 बिलियन विल बी जस्ट from 1 year revenue of this completion of the project. So we will take some share of this, and inshallah, that's a great area of growth that we are looking at. ओके सर, जस्ट टू समराइज, आपका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा दैट इज द मैनेजमेंट फीस, राइट?
और उसके Exactly. अलावा कोई अदर रेवेन्यू नहीं है? फॉर एग्जांपल आई वाज थिंकिंग कि मे बी कुछ लाइक फिल्म प्रोडक्शन वगैरह भी उधर से भी वो रेवेन्यू होगी, जनरेट वो होगा? देखिए, वो तो मैंने कहा ना, वो तो नए, वो तो प्रोजेक्ट जो इग्नाइट का प्रोजेक्ट आपने पूछा, वो मैंने जी जी आपको बता दिया कि उसमें हमारे को मैनेजमेंट फी मिल रही है ऑफ मैनेजिंग द एंटायर प्रोजेक्ट एज अ लीड मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसमें एनिमेशन की फिल्म्स भी बन सकती हैं, इसमें एनिमेशन एक्सपोर्ट भी हो सकती है फॉर अदर पीपल, इसमें गेमिंग के ऊपर बहुत सारी गेम्स डेवलप हो सकती हैं। सो व्हेन वी लुक एट अपॉर्चुनिटीज, दे आर ह्यूज। तो आखिरी में मैं सवाल फवाद का जवाब देना चाहूँगा। फवाद, ये जो लास्ट क्वार्टर है, अगर आपको याद हो, जो उस पर प्रेजेंट हुआ हुआ है और नेगेटिव नजर है, इसमें वी वर अंडर वॉर, तो सारे एडवर्टाइजिंग जो थे ना, पूरी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, और मल्टीनेशनल कंपनीज ने तो पूरा पूरा महीना स्पॉन्सरशिप नहीं की। तो जो जहाँ पे हम 400-500 मिलियन रेवेन्यू कर रहे थे, हम 100-200 मिलियन पे आ गए थे, तो वो सिग्निफिकेंट उसकी वजह से डिक्लाइन आया है। I don't see that continuing, but that is the main reason for the decline of that quarter. We all know the situation, so I'm sure, but I wanted to explain it further. अगर आपने देखा हो तो लिखा हुआ भी था. But thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum.